ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो प्लांट पार्ट है वो फिनिश करना है हम लोग को अभी। जैसे मैंने अभी समझाया ये आइडियली फर्स्ट पार्ट होना चाहिए, पर हम इसे बाद में कर रहे हैं। पहले हम लोग ने एनिमल पार्ट फिनिश कर लिया है। अब हमें ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का यहाँ से प्लांट पार्ट जो है वो समझना शुरू करना है। जब हमने सेकंड पार्ट किया था हमने तब भी समझा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड स्टिमुलाई, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई इज़ व्हेन and there is any change in your external environment, कुछ भी चेंज आता है आपकी सराउंडिंग्स में, that is called as a stimuli. तो stimuli is a plural word, singular of that would be stimulus. तो जैसे कि हम बड़ा कॉमन सा एक एग्जांपल करते हैं कि आपके रूम में अचानक से लाइट ऑन हुई है, दैट इज ऑल्सो अ चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो आप क्या करते हैं, आप एकदम से यू क्लोज योर आईलिड्स नो टू सेव योर आईज फ्रॉम लाइट और टू स्टे स्लीपी फॉर सम मोर टाइम। इसी तरीके से योर फेवरेट फूड पासिंग बाय, you are smelling that fragrance, that is also a stimuli. इसी तरीके से like your friend trying to punch you is also a stimuli. तो ये सब stimuli हैं आपके external environment में, anything impacting you, anything affecting you is a stimuli. ठीक है? And what is the response to that is how do you react to that? Like how your body reacts to you, how to it, how your system reacts to that is called the response of an organism to that stimuli. Now it can be in various forms, जैसे कि if mama ने light on कर दी है room की, तो you are closing your eyelids no even more tightly to not to let the light enter into your eyes. So that is a response to that external stimuli that mama created around you. Next is the yummy food passing by can give you a lot of flush of saliva into your mouth, or it can be your eyes getting dilated. Wow, yummy! Or it can be like various actions, no, depending upon your choice of it or your previous uh, memories. You react to things, है ना? Like in animal part, we had one example that if you have picked up or touched a hot plate or you picked up a hot plate, so there can be various reactions, responses to that. One can be of throwing that plate away and बाद में मम्मा से पिटाई खा लो, or then if that is breakable, or other could be keeping it back slowly so that the plate is not broken and uh, you're not hurt. And another could be shouting, then could be crying mummy lag gayi. So there can be different things, no, how people respond to different stimuli. लेकिन हाँ ये होता है कि जो चैनल होता है ना इंफॉर्मेशन का, how it goes to your brain and how the response comes back, that we have already discussed in animal part. अब we are discussing here how does it happen in plants, कि प्लांट्स में कैसे होता है। तो प्लांट्स में स्टिमुलाई क्या होंगे, प्लांट्स क्या आईज क्लोज तो नहीं कर सकता लाइट ऑन कर दो तो, है ना? तो उसके अलग रिस्पॉन्सेज़ होंगे, लाइट के साथ कैसा रिस्पॉन्ड करेगा प्लांट? तो अगर ये लाइट है एंड दिस इज़ द प्लांट, है ना? तो प्लांट क्या करेगा? उसका जो शूट है इट विल ट्राई ग्रो टुवर्ड्स द सन टू गेट मैक्सिमम एनर्जी। तो दिस इज़ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, दिस इज़ द स्टिमुलाई एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्स टू इट। बहुत रैपिड रिस्पॉन्स हुआ क्या प्लांट्स में? बहुत रैपिड रिस्पॉन्स तो नहीं हुआ ना, ये तो ग्रोथ है। So the response to this stimulus comes through growth in plants, and that is comparatively slower than animals. तो अब इसी तरीके से the roots they try to grow away from it. Roots कहाँ? डार्कर साइड की तरफ ग्रो करते हैं, सो दे ग्रो अवे फ्रॉम लाइट। सो दैट इज ऑल्सो वन इम्पैक्ट, वन रिस्पॉन्स। तो अगर लाइट की तरफ, पहले तो सबसे पहली बात तो दैट इज फोटोट्रोपिज्म, है ना? जो मैं ये अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोट्रोपिज्म। व्हेन आई एम गोइंग टुवर्ड्स लाइट इट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, व्हेन आई एम गोइंग अवे फ्रॉम लाइट दैट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो ये क्या है? दिस ग्रोथ towards light or away from it is the response of a plant to what? To the stimulus that is sunlight. Got it बच्चे or not? Understood or not? Simple no? चले अभी आगे, आई एम नॉट रीडिंग थ्रू लाइन्स क्योंकि ये बहुत सिंपल सा पार्ट है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे
जहाँ इंपॉर्टेंट कंटेंट आएगा वी विल रीड ईच एंड एवरी लाइन। चलो, तो अभी दिस वी हैव डिस्कस दैट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में वी हैव डिस्कस दैट इन डिटेल ऑलरेडी। अब हमें उसको प्लांट पार्ट में डिस्कस करना है। ठीक है, इन प्लांट्स हाउएवर द स्टिमुलाई इज in a very limited way. This is because the plants do not have a nervous system like animals have. This is because of the lack of nervous system in plants that then very rapidly doesn't show their response to the stimuli. The plants use only hormones for producing reactions to the external stimuli. Okay, from the above examples, we conclude that stimuli acts on our body, then we react in a manner which is the best interest of our body. The reaction which we give to the stimuli involves many organs. It is therefore necessary for all the concerned organs to perform in a cooperative, systematic manner. So that is called as coordination. When they are coordinating to give a response to the stimuli or stimulus outside, that coordinated action requires coordination between different organs. This is called as coordination. Got it, bache? So, working together of various organs of an organism in a systematic manner so as to produce proper response to stimuli is called coordination. Got it, bache? Clear or not? Now, this is control and coordination in plants that we need to discuss. They do not have nervous system. That's an important fact. Like eyes, ears, nose, etc. These sense organs are not present there, but they can sense things, the light, gravity, chemical, water, and touch, and respond them. They can sense that all. Now, plants can sense light, gravity, water, chemical, and touch by the action of hormones in them. So it is because of the this is one important fact. Better write this in your notes that this is because of the hormones produced in plants. Okay. The stimulus like light, gravity, chemicals, water, and touch are called environmental changes. So we can also say that plants coordinate their behavior against environmental changes using hormones. Got it, everyone? अभी इन हॉर्मोन्स का ही एग्जाम्पल हमें यहाँ रीड करना है विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ एनिमल्स दे यूज नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम बोथ टुगेदर, जिसे कि हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम हैविंग टू सब पार्ट्स, CNS and PNS, central nervous system and peripheral nervous system, and endo what, कौन बताएगा? Endocrine system. Absolutely right. Endocrine means, Arya, ductless or with duct? Endocrine what means? Last class में कराया था. Yes, means Endocrine is with ducts or without ductless. ducts. Yes, this is Ductless. ductless, right? Absolutely, this is ductless. So ये जो hormonal system है जो ductless है, that is endocrine. इसमें exocrine भी हो सकता है. तो hormonal system हुआ पूरा endocrine और exocrine का, एंड साथ में हुआ नर्वस सिस्टम में CNS एंड PNS. ये हो गया एनिमल्स के अंदर, है ना? लेकिन यहाँ पर plants do not have this nervous system, they only have hormones to respond to that. Plants respond to various stimuli very slowly by growing. So it is the growth which shows their response to that stimuli. Okay or not? So you won't be able to notice the change in a day or two, no? होगा क्या ऐसा एकदम से? एकदम से तो कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे ना, अगर आप रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जैसे आज सन इधर से राइज हुआ, उसके थोड़ी देर बाद उधर को वेस्ट में सेट हो रहा है, और प्लांट इज समवेयर इन द मिडल वेयर इट कैन हैव सनलाइट फ्रॉम बोथ दी एरियाज, तो आप देख पाओगे क्या स्टेम ग्रोइंग इन विच डायरेक्शन? क्योंकि वो तो दोनों तरफ से सन से एक्सपोज्ड है ना? तो इसीलिए दे दे यू कैन नॉट ऑब्जर्व देम इमीडिएटली. आप उनमें इमीडिएट चेंज नहीं देख सकते हो कि अभी आपने एक छोटा सा पॉट उठाया और जाके सनलाइट में रख दिया और देखो अच्छा सन तो इधर है लेकिन मैम इधर तो ग्रो नहीं कर रहा, आपने तो कहा था उधर ग्रो करेगा. तो ऐसे अचानक से नहीं दिखता, इमीडिएटली यू कैन नॉट सी द चेंज. ओके, now from the above discussion we conclude that functions of control and coordination plants is performed by chemical substances called plant hormones. अब हमें इन प्लांट हॉर्मोन्स का नाम पढ़ना है. वन इज दिस, हम प्लांट हॉर्मोन्स को कहते हैं फाइटो हॉर्मोन्स,
और ये फाइटो वर्ड्स कम फ्रॉम प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। तो व्हाट आर फाइटो हॉर्मोन्स? दीज आर दी प्लांट हॉर्मोन्स। तो अगर दे आस्क यू लिस्ट 4 फाइटो हॉर्मोन्स, तो दे आर एक्चुअली आस्किंग यू प्लांट हॉर्मोन्स. Now we discuss that various types of plant hormones. We should know the meaning of dormancy, breaking of dormancy. What is dormancy? Dormant होना, as in sleeping phase में चले जाना, inactive. This is the inactive phase of it. And breaking of dormancy means becoming active again. So a resting inactive condition in which metabolism also stops is called dormancy. जैसे seeds होते हैं, है ना? जैसे कि आपकी मम्मा के किचन में कंटेनर में ब्लैक ग्राम पड़ा है ना? वो फुल मूंग पड़ा है, तो वो जो सीड्स हैं, होल सीड्स हैं, वो किडनी बीन्स पड़े हैं, वो सब दे आर डोरमेंट, क्योंकि जब तक उन्हें अपनी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, दे विल रिमेन इनएक्टिव, बट दे आर नॉट डेड. वो डेड नहीं है, दे आर ओनली डोरमेंट, दे आर ओनली इनएक्टिव. So as soon as they get the favorable condition, they'll become active again. Next is another part of the plant having dormancy is the bud. Bud भी dormant होती है. The bud is young undeveloped shoot of a plant which on breaking the dormancy can form a branch, a leaf or a flower depending upon its position. अब वो bud कुछ भी हो सकती है. अगर वो fern की bud है तो वो uncurl हो जाएगी और क्या बन जाएगी? वो एक stem का part बन जाएगी. अगर वो एक ये bud है तो वो ओपन होकर फ्लावर बन जाएगी. तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन वो जो बड है वो अलग-अलग अपनी शेप्स, ब्रांचेस बन सकती है, लीफ बन सकती है, फ्लावर बन सकती है. तो वो डोरमेंसी ब्रेक होने पे जो बड है वो भी अपनी अलग शेप ले सकती है. सो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ अ बड आल्सो रिक्वायर्स सर्टेन प्लांट हार्मोन्स. कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड, नाउ वी विल डिस्कस प्लांट हार्मोन्स. अब हमें प्लांट हार्मोन्स की बात करनी है, फाइटो हार्मोन्स की. तो यहाँ हमने क्या देखा? Auxins, gibberellins, cytokinins, and abscisic acid. These are 4 phytohormones that we are going to study. ठीक है बच्चे? नाम लिखो, इनका एक टेबल क्रिएट करते हैं अभी इनमें. और इस लिस्ट से अच्छा मैं आपको दूसरी लिस्ट से करवाती हूँ इसके नामों का फंक्शन साथ में. देखो बच्चे, अभी ठीक है? अभी ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये हार्मोन्स है ऑक्सिन्स, गिबरेलिन, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड, एक इथाइलिन. और इथाइलिन पता है क्या होता है? आप लोगों ने कभी मस्क मेलन स्मेल किया? कभी देखा है किसी लेडी को मस्क मेलन खरीदते हुए? वो क्या करती हैं, उसको स्मेल करके ले रही होती हैं. या फिर आपके फ्रिज में कभी मस्क मेलन रखा हो ना, तो पूरे फ्रिज में एक पेक्यूलियर सी स्मेल हो जाती है, एक फ्रेग्रेंस हो जाती है इनफैक्ट. वो राइपेंड फ्रूट्स में से आती है, ठीक है. और वो जो खुशबू होती है ना, वो इथाइलिन की होती है बच्चे. तो वो अलग सी जो एकदम खरबूजे में से, खरबूजा बोलते हैं ना मस्क मेलन को, खरबूजे में से एकदम जो पेक्यूलियर अलग सी फ्रेग्रेंस आती है, वो इथाइलिन की होती है. और आपको पता है, अगर आप मान लो बाय चांस 2 ले आए मस्क मेलन, वन इज अ राइपन्ड वन, अनदर थोड़ा हार्ड वन है, तो दोनों को साथ में रख दो ओवरनाइट, दूसरा भी राइपन हो जाएगा. इथाइलिन एस्केपिंग फ्रॉम हेयर नो वुड हेल्प दिस राइपन फास्टर. इसीलिए तो हिंदी में कहावत है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है. इट एक्चुअली मेक्स सेंस, दैट इज साइंटिफिक. कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, इट हैज गॉट अ रीजन बिहाइंड दैट. ठीक है. चलो अभी ये बात करते हैं, सबसे पहले हम ये क्या है. सबसे पहले बात कर रहे हैं हम ऑक्सिन्स की. देखो, प्रोमोट सेल इलोंगेशन. अब मैं इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ. मैं ये समझ लेती हूँ कि ये मेरे साइज ऑफ सेल्स हैं, इस तरीके से शूट एपेक्स में. तो सेल्स रफली आई एम ट्राइंग टू कीप देम ऑफ द यूनिफॉर्म साइज. ठीक है. और अब क्या हो गया, इधर आ गया सन. मतलब मोस्टली मैंने स्पॉट को वहां रख दिया जहां से सिर्फ इसी डायरेक्शन से, दैट इज फेसिंग सन. तो पता है क्या हो जाएगा, कुछ सेल्स लॉन्गर हो जाएंगे. देखो क्या हुआ, द वन फेसिंग द सन आई हैव ट्राइड टू कीप इट ऑन द अदर साइड, नो, मतलब कीप इट टू द साइड ऑफ द सन. और इधर क्या किया है, यहाँ पर
सेल इलोंगेशन हो गया है शेडी साइड में। मुझे ना एक्चुअली इसको ऐसे बनाने की जगह कुछ ट्राई करना चाहिए था, इतना सा बनाना ऐसा। तो सेल्स इलोंगेट हो गए हैं, राइट? अब देखो ये जो ग्रोथ है, जैसे जैसे ये वाली साइड इलोंगेट होती जाएगी, तो क्या ऐसे नहीं लग रहा कि इधर बेंड होता जाएगा ही? तो ये ऑक्सिन की वजह से हो रहा है। बताया था ना मैंने, ऑक्सिन इज ऑन द शेडी साइड। तो ये सन है, इधर सनलाइट आ रही है, एंड दिस इज द शेडी साइड, है ना? और ये जो शेडी साइड है जहां पर सनलाइट नहीं है मोस्टली, दिस पार्ट इज हैविंग ऑक्सिन इन इट। और यहाँ पर ऑक्सिन सेल इलोंगेशन कर देता है ताकि शूट टिप जो है वो सॉरी, ताकि शूट टिप जो है इट स्टार्ट्स टू ग्रो टुवर्ड्स द सनलाइट। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो सेल इलोंगेशन कौन कर रहा है? इट इज ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। गॉट इट और नॉट? इसी तरीके से गिबरलिंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में? तो इलोंगेशन के लिए ऑक्सिन एंड गिबरलिन, मैंने एग्जांपल से समझा दिया। सेल इलोंगेशन क्या है? सेल लंबा हो जाएगा। तो इट इज सेल इलोंगेशन इज डन बाय ऑक्सिन्स एंड गिबरलिन्स, ये करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। साइटोकिनिन्स, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, दे हैव गॉट नो रोल इन सेल इलोंगेशन। इनसे सेल लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ कम्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। अब सेल ने डिवाइड होना है और फिर उसके बाद इन्होंने ग्रो भी तो करना है, बिगर इन साइज अगेन। तो दिस इज सेल डिवीजन एंड दिस इज ग्रोथ। Cell division and growth, again auxin, gibberellins or cytokinins, they're all three responsible. Ethylene and abscisic acid, they have got no role in that. ठीक है, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? Gibberellins are the one that are responsible for seed germination. तो seed germination, जब seed आपकी breaking of dormancy है ना, कि डोरमेंसी ब्रेक करना है और जर्मिनेट करना है, तो फॉर दैट गिबरलिन इज रिस्पॉन्सिबल, रेस्ट ऑल दे हैव नो रोल इन दैट। ठीक है बच्चे, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आई हैव जस्ट नाउ गिवन यू एग्जांपल। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इथाइलिन, उसकी वजह से। सीड डोरमेंसी कौन मेंटेन रखेगा? जो कि ग्रोथ इनहिबिटर होगा, जो ग्रोथ को रोकेगा। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है बेटा, तो वो सीड डोरमेंसी मेंटेन रखता है कि कंटेनर में भी सीड खराब नहीं होगा। एब्सिसिक एसिड, ठीक है। देन इज प्रोमोट्स एब्सिशन। एब्सिशन मतलब जैसे जो भी प्लांट पार्ट है विच हैज लिव्ड इट्स लाइफ, या सेल मेच्योर हो गए हैं, अभी देर ऑफ नो यूज, तो उनका फॉल ऑफ मेंटेन करेगा, कि विल्टिंग और लीव्स का शेड हो जाना, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक वर्ड्स कम्स फ्रॉम एब्सिशन, नो? तो वो जो पार्ट्स शेड ऑफ करने हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं वहां से। गॉट इट बच्चे और नॉट? अंडरस्टूड दिस? अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें इट इज सो इजी टू लर्न। एब्सिसिक एसिड के दो फंक्शंस है, सीड डोरमेंसी और एब्सिशन, दोनों नेगेटिव काइंड ऑफ वर्क है ना? और राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए एक अलग सा एग्जांपल ये याद करना है सिर्फ। इसके अंदर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ में ऑल थ्री कैटेगरीज यू कैन रीड। इलोंगेशन में ऑक्सिन एंड गिबरलिन, एंड जर्मिनेशन में इट्स ओनली गिबरलिन। कितना आसान नहीं हो गया याद करना इसे? ठीक है, तो अभी ये वाला जो पार्ट है ये आपको याद करना है पूरा। अब मैं इसको आपको एज अ स्क्रीनशॉट चैट में भी शेयर कर रही हूँ इसे, और इसको कोई एक बच्चा, इप्सा बेटा, पोस्ट दिस इन द ग्रुप। ठीक है, अब देखें इसको एक बार थ्योरी में पढ़ लें इसी चीज को। एक और थोड़ा सा कोशिश करते हैं मेमोरी देने की। सबसे पहले ऑक्सिन की बात कर रहे हैं। ऑक्सिन में हम अभी पढ़ के आए, सेल ग्रोथ में भी टिक था, सेल इलोंगेशन में भी टिक था। ठीक है, प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ, अगेन ग्रोथ है, तो टर्मिनल ब्रड्स, फूड्स एंड फूड फ्रूट फॉर्मेशन, मतलब ये भी तो ग्रोथ ही है ना, बड का आना या फ्रूट का बनना, ये भी ग्रोथ के ही पार्ट्स हैं। तो ग्रोथ से रिलेटेड चीजें और सेल इलोंगेशन से रिलेटेड चीजें आप ऑक्सिन में टिक कर सकते हैं। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलें अभी आगे। नेक्स्ट हमने करना था गिबरलिन।
गिबरलिन स्टिमुलेट्स ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फूड टू फैसिलिटेट जर्मिनेशन। हमने सीड जर्मिनेशन में सिर्फ एक ही टिक किया था, गिबरलिन, है ना बच्चे? तो गिबरलिन का एक वो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। देन स्प्राउटिंग ऑफ लीव्स, ये अगेन एक ग्रोथ का एस्पेक्ट है। लीफ स्प्राउट होगी, नई लीफ आएगी, तो वो क्या है, देखो यहाँ पर नई लीफ आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो गिबरलिन की वजह से। आ रही है बेटा, बात समझ में ही नहीं आ रही? तो जर्मिनेशन का काम और उसके बाद पहली लीफ आना, ये देखो ये रहे वो दोनों पार्ट, गिबरलिन। तो अच्छा, इन्होंने बड़े अच्छे से फ्लो डायग्राम में ये भी बता रखा है कि प्लांट के कौन सी स्टेज में क्या है। फर्स्ट 2 स्टेजेस के अंदर गिबरलिन, क्योंकि सीड जर्मिनेट होनी है और उसके ऊपर स्प्राउटिंग ऑफ लीफ होना। सच अ गुड मेमोरी ट्रिक देव गिवन यू, है ना? देन इज दिस ऑक्सिन, जिसमें सेल का ग्रोथ भी होगा, एलोंगेशन भी होगा और इसके ऊपर बड्स और फ्रूट भी आएंगे। इसी में एब्सिसिक एसिड, डोरमेंसी ऑफ एम्ब्रियो, ड्रॉपिंग ऑफ राइपन लीव्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पर तो ये हो गया कि अगर फ्रूट राइप हो जाता है तो इसको एब्सिसिक एसिड को थोड़ा बाद में मेमोरी ट्रिक देते हैं, पहले साइटोकाइनिन पढ़ते हैं। साइटोकाइनिन में सेल ग्रोथ अगेन एंड देन सेल डिविजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, यही किया हमने यहाँ पर, देखो, है ना? ये रहा, क्योंकि डिवीजन और ग्रोथ इन दोनों के लिए साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल, है ना? देखें, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज जब सेल डिवाइड हो गए तो उसके बाद कोई परमानेंट टिश्यूज बना दो, कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बना दो, दैट इज डिफरेंशिएशन। वो अपने अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंगली अपनी शेप, अपना अपना लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं, अपनी लेयर्स डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है? Then is ethylene, ripening of leaves, fruits, excess amount of ethylene causes dropping of leaves and fruits. तो इसकी वजह से leaves का dropping हो जाता है और ये ripening of fruits में काम आता है। तो आप इसको generally ripening of fruits में discuss कर सकते हो। Then is this abscisic acid. Abscisic acid dormancy से related है। तो जो dormancy of embryo मतलब seed के अंदर वो dormant रहेगा, खराब नहीं होगा। तो actually this is dormancy of seed, no? embryo कहाँ होता है? कॉटिलेडन के अंदर ही होता है ना, छोटा सा। तो उसकी डोरमेंसी मेंटेन्ड है, मतलब उसको सीड को डोरमेंट कंडीशन में मेंटेन किया हुआ है उसने। और साथ में एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड एब्सिशन ऑफ फ्रूट्स, उनका जो फुल राइपन है उनका निकल जाना प्लांट से। अब याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ये भी आपको स्क्रीनशॉट में शेयर कर रही हूं मैं। राइट, इसको भी सब बच्चे ग्रुप में शेयर कर देना। मेनली तो बेटा यही 2 चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद तो प्लांट पार्ट इज वेरी सिंपल। जो अब यहाँ ये सब हमने अभी पढ़ा वही यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। एक बार ऑक्सिन को डिटेल में पढ़ लेते हैं और ऑक्सिन के डायग्राम को भी समझेंगे। सेल एनलार्जमेंट, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रहे हैं जल्दी जल्दी। सेल एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट मींस इलोंगेशन, राइट? तो सेल इलोंगेशन या एनलार्जमेंट विद सेल डिफरेंशिएशन। देन फ्रूट ग्रोथ, तो ग्रोथ, जहां वर्ड ग्रोथ है वहां भी ऑक्सिन और सेल इलोंगेशन में भी ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स द प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। लाइट एंड ग्रेविटी के को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कैसे? मैंने ऑल्दो आपको एक डायग्राम में समझा दिया, बट अभी बुक में भी डायग्राम आएगा, उस पर भी बात करता है। इन अदर वर्ड्स, ऑक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स। तो ग्रेविटी के टुवर्ड्स कैसे रिएक्ट करेगा और लाइट की तरफ कैसे रिएक्ट करेगा, इसको ऑक्सिन इज हैंडलिंग। ऑक्सिन मूव्स अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑक्सिन लाइट से दूर हो जाता है और ग्रेविटी के टुवर्ड्स काम करता है। ऑक्सिन हैज ऑपोजिट इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ऑक्सिन ग्रोथ को स्पीड अप कर देता है स्टेम में। इट स्पीड्स अप द ग्रोथ इन स्टेम। जहां पर ऑक्सिन होगा वहां ग्रोथ फास्टन अप हो रही होगी, लेकिन स्टेम में अगर ऑक्सिन रूट में प्रेजेंट है तो वो स्लो डाउन कर रहा होगा ग्रोथ को।
आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? अभी इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ, रुको। राइट, ये देखो बेटा, देखो इस डायग्राम में। तो अभी अगर आपने प्लांट को ऐसा जगह पे रखा है जहां पर लाइक इट इज एक्सपोज टू सन ऑल द टाइम, या फिर ओवरहेड है, सन मिल जाता है उसे, तो फिर ऑक्सीजन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन इफ यू हैव केप्ट द प्लांट समवेयर जहां पर एक ही साइड से सनलाइट आ रही है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसकी ऑपोजिट साइड में खुद को प्लेस कर लेगा। सो कहाँ गैदर हो गया ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल की इलोंगेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट विल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स सन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ग्रोथ फास्टर कर दी ना, स्टेम में ग्रोथ फास्ट कर दी, इलोंगेट कर दिया उसे, जिसकी वजह से उसकी बेंडिंग हो गई टुवर्ड्स द सन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट स्टेड इन शेड, वो शेड में रहा और उसने सेल्स की ग्रोथ बढ़ा दी, इलोंगेट कर दिया उनको। और ऑक्सीजन जहां पर भी है वहां सेल इलोंगेशन आया, फास्ट किया। अगर स्टेम का केस है तो वहां फास्ट किया, और अगर वो रूट में है तो वहां स्लो डाउन कर देगा। देखो कैसे, इसको भी ड्रॉ करके समझाती हूँ मैं आपको, कि इन केस हम इसे ऐसे समझ रहे हैं कि ये अब एक रूट है, ठीक है, ये एक रूट का पार्ट है। अब इस रूट के पार्ट के अंदर सन इज एट दिस एंड, जैसा हमने अभी पहले पढ़ा था। तो क्या करेगा, शेडी साइड पे आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर सन से अवे। लेकिन अब ये रूट है, तो अब ये ग्रोथ फास्ट नहीं कर रहा है, ये स्लो डाउन कर रहा है। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अगर यहाँ पर ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इलोंगेशन नहीं हुई। गॉट इट और नॉट? और इस तरफ इलोंगेशन हो गई, क्योंकि इधर तो ग्रो कर रहे हैं ना, इधर तो इलोंगेट हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, तो जो रूट टिप है दैट हैज ग्रोन अवे फ्रॉम द सन। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? जिस तरफ भी शॉर्टर सेल्स रह जाएंगे ना, उस तरफ को बेंडिंग हो जाती है। तो जिधर से बेंडिंग करना है वहां इलोंगेशन हो जाती है। अब रूट्स में ऑक्सिन का एक्शन रिवर्स होता है स्टेम से। उसने ग्रोथ फास्ट नहीं करनी, उसने इस जोन की ग्रोथ स्लो डाउन कर देनी है। अब जब स्लो हो गया तो यहाँ वाले तो सेल्स बड़े हो ही रहे, तो यहाँ वाले जब बड़े हो गए तो वो बेंडिंग अवे फ्रॉम लाइट हो गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन शेड में बैठकर यहाँ की ग्रोथ स्लो कर रहा था। बट द ऑक्सीजन इज ऑलवेज ऑन द शेडेड साइड, यहाँ वो शेडेड पोर्शन में ही है, अवे फ्रॉम सन। रूट में भी और शूट में भी। शूट में वो ग्रोथ को फास्टन अप कर रहा है, तो जिस तरफ से फास्ट हो रहा है वहां एलोंगेशन ज्यादा हो जाती है, तो वो बेंड टुवर्ड्स लाइट हो जाता है। शूट रूट में वो ग्रोथ को स्लो डाउन कर रहा है, इसीलिए शेडी साइड में ग्रोथ स्लो रह जाती है। फेसिंग सन साइड जो है, ग्रोथ फास्ट होकर एलोंगेट हो जाता है और बेंड्स टू अवे फ्रॉम लाइट हो जाता है। तो इसका मतलब रूट्स के अंदर इट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, नो, लाइट से अवे आ रहा है, और शूट सिस्टम में इट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अम्म, चलो अब ये देखो, हम लोगों ने यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो हैं वो पढ़ लिए। नाउ इट इज सेइंग सिंथेटिक ऑक्सीजन आर अप्लाइड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर।
तो ये जो सिंथेटिक, आजकल तो सिंथेटिक कितना सारा फूड है ना, आप देखेंगे फॉरेन कंट्री में कितने सारे फ्रूट्स ऐसे मिलते हैं जिनमें सीड्स ही नहीं होती। तो वो इसका मतलब वो ऐसे ऐसे फ्रूट्स बन रहे हैं जो आगे रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। तो प्लांट का ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फ्रूट एंड सीड वाज टू रिप्रोड्यूस। वो ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं है। तो देयर वन टाइम द प्लांट इज वन टाइम गिविंग अ फ्रूट एंड देयर द चेन ब्रेक्स। वो आगे इज नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, नो। तो ये सब सिंथेटिक हॉर्मोन्स की वजह से ही होता है। ठीक है, चलें अभी आगे देखें और। गिबरेलिन्स आर प्लांट हॉर्मोन्स व्हिच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स के प्रेजेंस में गिबरेलिन्स भी यही काम करते हैं। और ये क्या करेंगे, ये डोरमेंसी ब्रेक करेंगे सीड की। सबसे पहला काम हमने यही पढ़ा था, गिबरेलिन्स फर्स्ट स्टेज में ही पढ़े थे सीड जर्मिनेशन के, है ना? पिक्चर मेमोरी है ना? तो डोरमेंसी ऑफ सीड्स, और फिर उसके बाद उसकी जो लीव्स की स्प्राउटिंग है, जो उसकी शूट की एक्सटेंशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ गिबरेलिन्स। तो गिबरेलिन हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन मेनली शूट एक्सटेंशंस। इट स्टिमुलेट्स elongation ऑफ शूट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, सिंपल है। पिक्चर मेमोरी से याद है कि अभी जर्मिनेट हुआ है और थोड़ा सा प्लांट बड़ा ही हो रहा है, अभी इलोंगेट कर रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ गिबरेलिन्स। देन इज साइटोकिनिन्स। दे आर द प्लांट हॉर्मोन्स व्हिच प्रमोट सेल डिवीजन। काइनेसिस का मतलब ही, द वर्ड काइनेसिस मीन्स डिवीजन बेटा। इस वर्ड का मतलब ही डिवीजन है। तो साइटोकाइनिन्स मींस सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल। साइटोकाइनिन्स आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड्स। अब सीड्स और बड्स की डोरमेंसी ब्रेक करने में भी काम आता है। और डिलेइंग द एजिंग इन लीव्स, कि इसकी वजह से एज लीव्स जो है वो थोड़ा और टाइम दे लिव। सो अगेन ग्रोथ प्रमोटर है ना ये। साइटोकाइनिन्स promote the opening of stomata and they also promote fruit growth। तो ये फूड ग्रोथ में भी काम आ रहे हैं और ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में भी काम आ रहे हैं। बेटा ये जो छोटे छोटे फंक्शंस है ना, दिस यू विल हैव टू लर्न, यू कैन नॉट एस्केप दिस। ओके, मैं आपको एक और चीज यहाँ पर दिखाना चाह रही थी, एक मिनट रुको। यस, दिस इज द वन, राइट। इसको ना आपको ऐसा याद ही करना है कि ये कौन से ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं और कौन से ग्रोथ प्रमोटर्स। Growth promoters are auxins, gibberellins, and cytokinins. Abscisic acid and ethylene, they are growth inhibitors. ठीक है, इसको भी टेबल बना लो, जैसे मैंने ये एक छोटा सा डायग्राम आपको दिया है, इसको भी बना लो अपनी नोटबुक में कि ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन से होंगे, ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकिनिन्स। और ग्रोथ इनहिबिटर्स में नाम आएगा एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन का। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट करें आगे। Abscisic acid is a plant hormone which functions mainly as a growth inhibitor. Abscisic acid promotes the seed and bud dormancy. It also promotes the closing of stomata. Opening of stomata के लिए cytokinins है और closing of stomata के लिए abscisic acid. So abscisic acid promotes the wilting and falling of leaves, which is also called as abscission. तो ये abscission word से abscisic acid याद आई जाए। It also causes detachment of flowers and fruits from the plant. Memoratrix, ये जो टेबल इस तरीके से है, हो ये तो ब्लर है इमेज, बट इस तरीके से आपको ये जो
पर फिर भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मैम आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है? 1 मिनट रुको बेटा, मैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, साथ साथ में मैं भी कर लेती हूँ, हॉटस्पॉट भी ऑन। अब बताओ बच्चे, अब आवाज क्लियर है? ठीक है ना? ओके, चलो अब देखो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं। Movements of plant parts are usually caused by unequal growths in two regions by the action of plant hormones under the influence of the stimulus. जो भी stimulus है, here the candle light, उसके cases में जो unequal growth हो जाएगी plant के different parts में, कहीं ज्यादा और कहीं कम, उसकी वजह से ये प्लांट की मूवमेंट्स जो है हमें दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे ऑक्सिन हार्मोन इज मेड एंड secreted by the meristematic tissues at the top of the stem, speeds up the growth in the stem. So if one side of the stem has more auxin than the other side, then the side of the stem having more auxin hormone will grow faster than the other side. This will cause the stem to bend. है ना, पढ़ लिया ना हमने, इधर ज्यादा हो जाएगा शेडी में और इधर लंबा हो जाएगा। So this we have already read. And when the stem bends to one side, we say that stem is showing movement. This movement, which is also called as growth, this is because of unequal growth of different parts of the plant. The movement in any part of the plant is usually the growth movement only. The plant movement made in response to external stimuli fall into two categories. One is tropism, another is nasties. अच्छा, tropism क्या है? External stimulus पे based है ना, तो दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। लेकिन नेस्टीज क्या है, उसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जो स्टिमुलस की डायरेक्शन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता कि एक्शन किस डायरेक्शन में होगा। लेकिन ट्रोपिज्म में डायरेक्शन स्टिमुलस के एक्शन पर ही डिपेंड करती है। स्टिमुलस का जो भी डायरेक्शन होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि मूवमेंट ग्रोथ किस डायरेक्शन में आएगी। बट नेस्टीज में नहीं होता। जैसे आप मिमोसा पुदिका, टच मी नॉट प्लांट होता है, आप उसे टच करते हैं तो उसमें डायरेक्शन तो मैटर नहीं करती कि आप कहाँ से किस डायरेक्शन से टच कर रहे हैं उसे, है ना। तो दोज आर नेस्टीज। ट्रॉपिज्म क्या है? ट्रॉपिज्म इज जब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, कौन सी डायरेक्शन में सन है, कौन से डायरेक्शन में वाटर कर रहे हो, है ना। ऑन दोज इफ ग्रोथ डिपेंड्स, दोज आर कॉल्ड एज ट्रॉपिज्म्स। अच्छा, अभी और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इफ ग्रोथ, ये देखो ये वाले ट्रॉपिज्म जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ग्रोथ टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो दैट इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, अगर अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो दैट इज नेगेटिव ट्रॉपिज्म। जैसे मैंने फोटो के लिए, लाइट के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे दिया था। मैं बहुत ज्यादा लाइन बाय लाइन रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्लो भी हो रहा है और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। तो अच्छा ये इज इम्पोर्टेंट, ये सारा टेबल इज इम्पोर्टेंट अगेन। लाइट के रिस्पॉन्सेस को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, ग्रेविटी के रिस्पॉन्सेस को जियोट्रॉपिज्म, केमिकल के रिस्पॉन्सेस को कीमोट्रॉपिज्म, वाटर के रिस्पॉन्सेस को हाइड्रोट्रॉपिज्म, टच को थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये सारे क्या है, ये डिफरेंट ट्रॉपिज्म्स हैं। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सब होंगे। फोटोट्रॉपिज्म में पॉजिटिव और नेगेटिव। फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव जब लाइट के टुवर्ड्स ग्रोथ हो जाएगी, जब लाइट के अवे हो जाएगी दैट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जब ग्रेविटी के टुवर्ड्स चीज उगेगी और जब ग्रेविटी के अगेंस्ट उगेगी दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने इस तरीके से एक प्लांट पॉट लिया और उसके अंदर सीड जो है वो जर्मिनेशन के लिए रख दिया, तो शूट जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा और रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी जाएगा। तो दिस इज शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है शूट टिप। एंड दिस इज शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्योंकि ये ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रो कर रहा है।
ठीक है। इसी तरीके से कीमोट्रोपिज्म में जैसे कि ये हमारा स्टिग्मा फ्लावर के अंदर का, और इसके ऊपर ये पोलन सेटल्ड, और यहाँ पर हमारे ओव्यूल्स। अब ये जो पोलन ट्यूब है दैट grow towards the ovule is because of a sweet chemical nectar, no, which is released by these ripening ovules. तो जब ये ओव्यूल्स मैच्योर होते हैं, राइपन होते हैं, तो ये केमिकल रिलीज करते हैं, नेक्टर जिसे कहते हैं आप कॉमन लैंग्वेज में, उसकी टुवर्ड्स ग्रो करता है जो पोलन ट्यूब है, दैट इज कीमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, जैसे कि अगर आप ये समझ लें, आपने एक ऐसा लेंथ में एक पॉटेड प्लांट ले लिया, और आप उसके यहाँ पर आपने सेंटर में एक सीड जर्मिनेट कर दिया, लेकिन आप उसको बहुत स्पेसिफिकली सिर्फ इधर ही वाटर कर रहे हो, थोड़ा सा इधर, या फिर आप इसके अंदर एक क्ले पॉट रखकर और इसको पानी से भर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सीड जर्मिनेट करने के लिए इट विल ग्रो टुवर्ड्स द रूट्स, विल ग्रो टुवर्ड्स दिस वाटर, तो वो इधर को शो करेंगी, तो दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? ऐसे ही थिग्मोट्रोपिज्म किसमें दिखता है, जैसे टेंड्रिल्स वगैरह में, प्लांट के टेंड्रिल्स होते हैं, ये है, तो इस तरीके से टेंड्रिल्स होते हैं ना, है ना, तो ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं, अगर यहाँ पर आपके कोई भी सपोर्ट है, कोई रेलिंग्स है, कोई पोल्स हैं दैट आर फिक्स्ड, तो ये कोशिश करेंगे, ये इसकी तरफ ग्रो करेगा आके, तो दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? सारे ट्रोपिज्म्स एक बार हमने क्विकली डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं और इसे फिनिश करते हैं। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देखो यहाँ पर लाइट के टुवर्ड्स, तो यहाँ पर क्या है, देखो ये प्लांट जो है दिस इज ग्रोइंग टुवर्ड्स सनलाइट, है ना, तो दिस इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। दिस रूट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स ग्रेविटी, सो दिस इज positive geotropism. This shoot is growing against gravity. This is negative geotropism. Next, वही chemotropism जो अभी हमने डिस्कस किया। If the plant shows movement or growth away from the chemical, that is called as negative chemotropism. The growth of pollen tube towards the ovule during the process of fertilization is an example of chemotropism, positive chemotropism. And in this case, the pollen tube grows towards the sugary substance secreted by the ripened stigma, that is the carpel. ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, हाइड्रोट्रोपिज्म। इन अदर वर्ड्स द रिस्पॉन्स ऑफ plant part to water is called hydrotropism. Positive and negative I have already explained बेटा। देखो यहाँ पर कि अगर वाटर सोर्स इस तरफ है तो प्लांट के रूट्स अपने आप कोशिश करेंगे टुवर्ड्स वाटर ग्रो करने की, ठीक है। दीज टेंड्रिल्स दे आर हेयर शोइंग पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। The cucumber plant is climbing on a support with the help of its climbing organs called tendrils. तो अपने आप ही सराउंडिंग्स में सेंस करके कि वेयर दे कैन गेट स्टेबल टच, नो, वहां पे उस तरफ को ग्रो कर जाता है, दैट इज पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है बेटा, इसको लाइन बाय लाइन प्लीज रीड कर लेना। दिस पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। देखो, रूट ग्रोइंग अवे फ्रॉम लाइट, शूट गोइंग टुवर्ड्स लाइट, है ना, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल विद द hormonal action. This I've already explained. Okay. Now the response of plants to gravity, geotropism. ये देखो, this I've already explained, है ना। इसमें देखो हार्मोनल पार्ट एक्सप्लेन्ड है या इधर अपवर्ड डाउनवर्ड ही एक्सप्लेन्ड है? नहीं, इसमें आपको गिबरलिन का कोई रोल एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, chemotropism. This also we have discussed. Yes, this we have already discussed. No, I've shown you with the diagram already. Right. This water part also I have explained. They've given you this some examples of plants: bitter gourd, bottle gourd,
which show positive thigmotropism. क्योंकि ये क्लाइंबर्स होते हैं, ये their stems are weak, they cannot grow tall on their own, no, so they take a support of their surroundings and climb on them, no, take a support and go on them. Okay, now the usefulness of tropic movements, इसे जल्दी से डिस्कस करते हैं. The various types of tropic movements help the plants to survive. For example, even if a seed is planted upside down, अगर आपने उसको उल्टा ग्रो करा दिया, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी ग्रो करा दिया, लेकिन रूट्स विल ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स. पहले क्या निकलता है? रेडिकल निकलता है कि प्लिम्यूल निकलता है? पहले पहले क्या निकलता है? फुल टेल में जब सीड जर्मिनेट होता है प्लिम्यूल पहले आता. अच्छा, प्लिम्यूल और रेडिकल याद है क्या था? इफ दिस इज द सीड रूट आर से रेडिकल, तो जो रूट बनेगा लेटर दैट इज रेडिकल, एंड जो शूट बनेगा लेटर या प्लांट बनेगा ना, जो प्लांट बनेगा दैट इज प्लिम्यूल. तो पी से प्लांट, पी से प्लिम्यूल, एंड दिस इज रेडिकल. तो रेडिकल पहले बाहर आता है या प्लिम्यूल पहले बाहर आता है? रेडिकल। रेडिकल पहले बाहर आएगा. वाई? पहली बात तो जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करेगा सीड कोट, और सीड कोट स्वेल हो जाएगा विच इज नोन एज इम्बिबिशन. सबसे पहले इम्बिबिशन होगा. इम्बिबिशन की वजह से ये इसके सीड कोट का स्वेलिंग हो जाएगा और ब्रेक ऑफ होगा सीड कोट, और फिर उसमें से एम्ब्रियो में से सबसे पहले बाहर आएगा रेडिकल. इससे क्या होगा? प्लांट वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा. मिनरल्स, क्योंकि फूड का लंच बॉक्स तो उसके पास है. व्हाट इज दैट लंच बॉक्स? व्हाट इज दैट लंच बॉक्स? टेल मी. कॉटिलिडन, है ना? सीड के अंदर कॉटिलिडन्स होते हैं ना, तो वो लंच बॉक्सेस होते हैं प्लांट के, मतलब स्टोर हाउस. जैसे आप कहीं बहुत दूर जा रहे हो तो मम्मी खाना पैक कर देती है ना, ऐसे ही उसको उसकी मम्मा ने खाना पैक करके दिया है कि बेटा जब भी जर्मिनेशन होगे, लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो, जब भी जर्मिनेट होगे, तब तक के लिए, जब तक आपको सनलाइट नहीं मिल जाती, तब तक के लिए आप अपना लंच बॉक्स कंज्यूम कर लेना फॉर एनर्जी. आपने कभी ध्यान से ऑब्जर्व किया इस कॉटिलिडन का बाद में क्या होता है? नहीं देखा किसी ने? मैंने मेरी डॉटर को भी थोड़े दिन पहले ऑब्जर्व कराया था. ये बाहर आ जाते हैं, ग्राउंड से बाहर आ जाते हैं ये कॉटिलिडन्स. या आप बड़े आराम से 2 किडनी बीन्स के सीड्स ले लो और उसको भले कॉटन में रख दो, या फिर कॉटन कॉटन में तो खैर आप उसे बाहर आता ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे. तो कोई भी मग, कप, उसमें थोड़ा सा सॉइल डाल के उसके अंदर वो किडनी बीन्स डाल दो, और बहुत ज्यादा वाटर से मत भर देना, कहीं कप फुल ऑफ वाटर डाल दो उसमें. बस ऐसे रोज थोड़ा 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 सा स्प्रिंकल करते जाओ उसके अंदर वाटर. एट थर्ड और फोर्थ डे आप देखोगे कॉटिलिडन बाहर होगा. मतलब पहले क्या हुआ? इस एम्ब्रियो में से लिम्यूल निकला, फिर रेडिकल निकलना शुरू हुआ. रेडिकल थोड़ा सा निकला, अभी लीव्स नहीं आए, थोड़ा सा निकलना शुरू हुआ. अब प्लांट को पता है कि नाउ इट कैन फोटोसिंथेसाइज, क्योंकि सॉफ्ट ग्रीन स्टेम है ना, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम भी तो कर देती है फोटोसिंथेसिस. अब अब उसे इस लंच बॉक्स की जरूरत नहीं है. नाउ इट कैन फोटोसिंथेसाइज ऑन इट्स ओन एंड मेक इट्स एनर्जी फॉर इटसेल्फ. तो अब जो है ये अपवर्ड ग्रो करेगा, और ये कॉटिलिडन्स आपको प्लांट के दोनों तरफ किसी दिन हो सकता है गिरे हुए दिखे, और हो सकता है सेकंड या थर्ड डे तो अराउंड ही आपको हंगी दिखेंगे प्लांट के साथ बाहर. ठीक है? कभी देखा करो बेटा, ऑब्जर्व करो चीजों को अराउंड ही. तो ये फिर कॉटिलिडन्स वेस्ट हो जाते हैं, और फिर जो है वो प्लांट पार्ट बन जाता है, और वो जो प्लांट पार्ट है फिर फाइनली उस पे लीव्स जो है वो स्प्राउट कर जाते हैं, है ना? चलो, अभी आगे नेस्टीज का क्विकली एक छोटा सा डिस्कशन एंड वी आर डन. वी आर ओवर विद दिस टॉपिक नाउ. So this is nestes, the movement of plant parts in response to external stimuli, in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus, is called nastic movements. Main difference क्या है? Directional movement नहीं है nastic movements. Nastic movements are almost exhibited by the flat organs of a plant like leaves and petals of a flower. तो ये फ्लैट पार्ट्स हैं, इन्हें डायरेक्शन से मतलब नहीं है. दे शो दिस नेस्टिक मोमेंट्स. जैसे कि मिमोसा पुदिका का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया. ये एक नेस्टिक मोमेंट है. आप इसे टच करें तो इसके अंदर ये श्रिंक हो जाएगा, नो मैटर आप इसे किस डायरेक्शन से कर रहे हैं. The opening of petals of dandelion flower in the morning in the bright light and closing in the evening when the light fades is also a nastic moment. देखा है कभी आपने डैंडेलियन फ्लावर्स? ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं. चाइना रोज भी ऐसा ही करता है. मेरे घर में चाइना रोज है. आप सुबह मॉर्निंग में देखने जाओगे वो ऐसा बंद ही होगा ऐसे.
आफ्टरनून में वो फुल ब्लूम में होगा और इवनिंग में वो फिर ऐसा ही बंद हो जाएगा। तो ये इतनी रैपिड मूवमेंट्स तो ट्रॉपिज्म हो ही नहीं सकती है ना। बताया तो आपको ट्रॉपिज्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो तो ग्रोथ दिखाएगा, वो तो स्लो आएगा। ये तो कितनी फास्ट मूवमेंट है, सनसेट और सनराइज में हो रही है ना। तो दैट इज बिकॉज ऑफ नास्टिक मूवमेंट्स in the closing of petals of the moonflower in the morning and in bright light and opening at dark when the light fades is called as nestic moments. Again, ये जो moonflower है, मूनफ्लावर को हिंदी में क्या कहते हैं? रात की रानी। चेक करके बताऊंगी। रात रात मतलब ऑफ कोर्स नॉट, चेक करके बताती हूँ। आई थिंक दिस इज रात की रानी। ये क्या होता है? ये रात को इट ब्लूम्स। तो अगेन दैट इज अ नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट्स मे और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट्स। तो ये करेक्टरिस्टिकली मेनली ये ग्रोथ मूवमेंट्स नहीं होती, पर कुछ कुछ हो सकती हैं। जैसे कि फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट इज नॉट द ग्रोथ मूवमेंट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ अ फ्लावर बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट इज अ ग्रोथ मूवमेंट। तो पेटल्स का ब्लूम कर जाना और रात को वापस क्लोज डाउन कर जाना, ये एक ग्रोथ मूवमेंट है। लेकिन टच मी नॉट को टच करना और उसका क्लोजिंग हो जाना इज नॉट ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स आर वेरी वेरी स्लो, हाउएवर सम एक्सेप्शंस आर देयर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। उसमें से थिग्मोनास्टी एक बार पढ़ लेते हैं। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच इज कॉल्ड थिग्मोनास्टिक। तो जो मिमोसा पुदिका है दैट डजंट शो थिग्मोट्रोपिज्म, that is showing thigmonastic. देखिए अभी राइट, ये द सेम एग्जांपल दे हैव। छुई मुई बोलते हैं इसको हिंदी में। और इफ वी टच द लीव्स और rather the leaflets of the sensitive plant with our fingers, then its leaf fold up and droop almost immediately. The folding up of the leaves of sensitive plant on touching is an example of nastic movements. ठीक है बच्चे। कुछ ऐसा जो हमने नहीं पता हो इसमें से? यस, द सेंसिटिव प्लांट हैज पैड लाइक swelling called pulvini at the base of each leaf. It is pulvinous. The pulvini contain a lot of water in their cells due to the internal water pressure in them. So ना आपको वर्ड आता है ऑप्शन में, मतलब जो आपको ध्यान रखना है स्टर्गर, कि इट इज बिकॉज ऑफ द स्टर्गर द वाटर प्रेशर, जिसकी वजह से ये टच मी नॉट में नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं। So all the pulvini are very firm and hold the leaves above them upright. The pulvini also has large intercellular spaces. ये थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है, इतना डिटेल में है नहीं सिलेबस में, पर क्योंकि लखमीर सिंह में लिखा है और बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, इसलिए कवर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी द डायग्राम दे हैव शोन यू। इस डायग्राम में देखो, पहले बिफोर एंड आफ्टर में देखते हैं। तो दिस फर्म पिल्विनस शोन है ना। और लीफ एकदम ऐसा स्ट्रेट है इसके अंदर, ऐसा इस तरीके से लीफ बिल्कुल स्ट्रेट है। जैसे ही आपने इसको टच किया तो क्या हुआ? यहाँ से लॉस ऑफ वाटर हुआ और इस तरफ से क्या हो गया? बेंडिंग, और ड्रूप कर गई लीव्स, और इधर से भी ड्रूप कर गई। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो डायरेक्शन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा किधर से टच आया है, किधर वाटर लॉस होना है, लेकिन ड्रूपिंग हो जाएगी उस सारी लीव्स की, है ना। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तो देखिए एक बार इसको फिर भी लाइन बाय लाइन रीड कर देती हूँ इसे मैं आपके लिए। The folding up of leaves of the sensitive plant on touching is due to the sudden loss of water from pad-like swelling called pulvini present at the base of all the leaves of the sensitive plant and make the pulvini lose their firmness, causing the leaves to droop and fall. आ गई बच्चे बात समझ में? क्लियर है? When the leaves of the sensitive plant are touched with the finger, then an electric impulse is generated which travels through ordinary cells because there are no nerve cells. That's it, beta. Mostly we have covered all. The electric impulse acts as a plant hormone. The plant hormone makes the water migrate from the cells of half of the pulvinus
to the intercellular spaces in the other half of the pulvinus. This loss of water from half of the pulvinus causes it to lose its firmness from one side and then to droop to the same side from where the loss of water has taken place. At a gap of 15 to 30 minutes after the leaves have folded, water usually diffuses back into the same cell और उससे जो है वो again जो है वो फर्म पोजीशन पे लीव्स जो है अपराइट वापस खड़ी हो जाती हैं। ठीक है जी, समझ में आया? Then the non-directional movement of the plant part, usually petals of the flower in response to the light is also called photonasty. It is the nastic movement of the plant part like petals of the flower in response to light. Photonasty. A dandelion flower opens up in the morning in the bright light and closes in the evening when the light fades, when it gets dark. This is photonasty explained here. हम अभी तो बात करके आए हैं इसकी. और moonflower में it is opposite. We have already discussed this. Opening and closing of flowers in response to light are growth, but they are nastic movements. Petals open when their inner surfaces grow more. जब उनकी inner surfaces ज्यादा ग्रो कर जाती है, जैसे कि हम ऐसे समझ लेते हैं, चलो एक पिक्चर से, पता नहीं उन्होंने पिक्चर समझाई है कि नहीं समझाई है, ये है ना, तो अगर ये लीफ का पार्ट है और ये पेटल्स हैं, तो यहाँ पर ग्रोथ हो जाएगी ना इनर साइड पे, तो क्या हो जाएगा, ओपन अप हो जाएंगी। गॉट इट बच्चे और नॉट? ठीक है। So petals open when their inner surfaces grow more than their outer surfaces. On the other side, plants close, petals close when the outer surfaces grow more. जब बाहर की तरफ ग्रोथ हो जाती है तो वो वापस क्लोज हो जाती है। फंक्शन ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये हम सब अभी पीछे इतना डिस्कस करके आए हैं, तो अब हमें इसको डिस्कस करने की दोबारा जरूरत नहीं है। And with this, this part is over, beta ji. Yay! Good, Sarah. So happy. Finally, it is over. सब घड़ी देख रहे थे ना बार बार, घड़ी 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 देख रहे थे, कब खत्म होगी मैम क्लास, 9:40 हो गए हैं। नहीं, पर समझ में आ गया सब कुछ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है जी, ओके। आज के लिए इतना ही बच्चे लोग, और आप कल मिलते हैं 4:30 की क्लास में, और वहाँ मैथ्स की क्लास में मिलेंगे। बाय बाय। Hello. Thank you, ma'am.